হেনা প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর? কাহা মোরা স্বরূপ রূপা, কাহা সনাতন? কাহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন? কাহা মোরা ভট্ট যুগা, কাহা কবীরা? এক কালে কোথা গেলা গোরা নটরা? পাষাণে কুটিব মাথা, অনালে পাশিব। গৌরাঙ্গ গুণেরা নিধি কোথা গেলে পাব? সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস, সে সঙ্গ নাম পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস। জয়া নীল প্রেমাদন করুণা প্রচুর। জানিল প্রেমাদন করুণা প্রচুর। হেনা প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর? হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare. Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Haribol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroh Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitansha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshikaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratushe Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। और सामान्यतः हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम से चर्चा करते हैं, लेकिन भागवत बताती है दो प्रकार की भागवत होती है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। और विशेषतः जो आचार्यों ने हमारे जीवन को कृष्ण भक्ति देने में इतना योगदान दिया है, उनको स्मरण करना हमारी भक्ति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी अभिलाषा से हम लोग आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि हमारी कोई योग्यता नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है इस विषय पे बोलने के लिए, फिर भी मैं वैष्णवों के आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। वैसे वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही दिव्य होता है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान की जन्म और कर्म की लीलाएं सारी दिव्य होती हैं। उसी प्रकार भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो गेट खुल गया उसको बंद कर। उसी तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध हैं, वो भी भगवान की इच्छा से ही आते हैं, भगवान की इच्छा से ही सारे कर्म करते हैं। जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद को पूछा था कि स्वामी जी, आपको कैसे पता कि परमात्मा आपको मार्गदर्शन करते हैं, आप कैसे ये दावा कर सकते हो? तो रिपोर्टर था। तो प्रभुपाद उसको बोलते हैं, देखो परमात्मा मेरे हृदय में बैठे हैं और परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, और परमात्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारी जेब में $2000 रखे हैं। तो मेरे परमात्मा तुम्हारे परमात्मा को बोलेंगे कि ये स्वामी जी को $2000 निकाल के दान दे दो, और वो व्यक्ति की जेब में रियली $2000 रखे थे तो वो भागा वहां से तो उस तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं, वास्तव में उनको प्रेरणा भगवान ही देते हैं। तो उनके जीवन में जो कुछ घटनाएं होती हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो दिव्य हैं। तो उनका आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही हमारे लिए महोत्सव है। लेकिन अगर दोनों में भी अगर हम चर्चा करें कि कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो बताया जाता है कि तिरोभाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आविर्भाव जब कोई वैष्णव आचार्य का होता है तो सामान्यतः लोग उनकी महिमा को जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब वो जब उनका तिरोभाव होता है, जब उनका तिरोधान होता है इस जगत से, तब उनकी महिमा पूरे विश्व में फैल चुकी होती है। तो हम लोग उनकी इस महत्व को या उनकी संगति को और ज्यादा सराहना कर पाते हैं। इसलिए तिरोभाव वास्तव में हमारी परंपरा में विशेषता तिरोभाव भी एक महोत्सव है। और इसका एक और भाव भी है कि कैसे वैष्णव आचार्य दोबारा से भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं और वहां महोत्सव होता है, तो उसी की प्रतिछवि हम भी यहाँ महोत्सव बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये तिरोभाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम करेंगे। आप लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरुज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे
रूपानुग विरुद्धापा अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो बहुत ही विशेष क्रांतिकारी आचार्य हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनकी महिमा को, उनकी विशेषता को समझने के लिए हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के इतिहास को समझना होगा। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले शुद्ध भक्ति की धारा इस पृथ्वी में नहीं थी। जैसे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की 4 विशेष उपहार हैं जो चैतन्य महाप्रभु के पहले इस धराधाम में नहीं थी। 4 यूनिक गिफ्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। एक वो बताते हैं कि हरि नाम, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। बहुत सारे नाम तो उपलब्ध थे, भगवान के नाम का जब प्राय भारतवर्ष में अखंड अखंड समय से चलता आ रहा है, लेकिन गोलोकेर प्रेम धन, जो गोलोक वृंदावन का विरह भाव है, वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपलब्ध कराया। सबसे पहले नाम। दूसरा है शुद्ध भक्ति। सामान्यतः मिश्रित भक्ति देखने के लिए मिलती थी, जहां कोई ज्ञान या कर्म से वो आच्छादित होती थी, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्ति की धारा हम तक पहुंचाई। तीसरा है श्री वृंदावन धाम। भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने के बाद यद्यपि वज्रनाभ ने कई स्थानों पर भगवान की श्री विग्रह की स्थापना की, लेकिन कालक्रम में धीरे धीरे वो सब लुप्त हो गए। भगवान की लीला स्थलियां भी लुप्त हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री वृंदावन धाम हमको दिया, और उनके अनुयायियों ने जाकर के वृंदावन धाम की पुनः खोज की। और चौथा है श्रीमती राधा रानी। अभी हम लोग देखते हैं जितने भी कृष्ण मंदिर होते हैं वहां राधा रानी का विग्रह साथ में होता है, लेकिन अगर हम भारत का इतिहास देखें, आज से 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले कोई भी प्राचीन मंदिर ऐसा नहीं है जहां श्रीमती राधा रानी के विग्रह हैं। आप विचार कीजिए, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, गुरुवायूर, तिरुपति, रंगनाथ, द्वारका, आप कोई भी स्थान पे जाइए, श्रीमती राधा रानी के विषय में कोई जानकारी ही नहीं थी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन जन तक पहुंचाई। और ये सर्वोच्च स्थिति, ये सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति, हाईएस्ट स्पिरिचुअल परफेक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर व्यक्ति को दिया। और ये भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम, कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये संकीर्तन आंदोलन है पृथ्वी के गांव गांव, शहर शहर में पहुंच जाएगा। हुआ भी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो प्रचार करते थे, हरिनाम के माध्यम से असंख्य लोगों को भक्त बनाया। और हरिनाम संकीर्तन या उपदेश देने की भी जरूरत नहीं थी, जो व्यक्ति महाप्रभु को देख लेता था, उनकी सुंदरता को देख करके भक्त बन जाता था। और कहीं उन्होंने स्पर्श कर दिया। गुरु महाराज बताते हैं कि ऐसी अवस्था हमारे साथ होती है जब हम भूत को देख लेते हैं। यद्यपि भूत टच नहीं करे तो भी दूर से देख के कैसे रोमांच आने लगता है, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु को देख करके लोग भक्त बन जाते थे। और अगर भूत ने कहीं आपके सिर पे हाथ रख दिया या कंधे पे हाथ रख दिया तो आपकी क्या गति होगी। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यदि किसी को स्पर्श कर लेते थे या आलिंगन कर लेते थे तो व्यक्ति कृष्ण प्रेम में उसको 440 का झटका लगता था। और वो व्यक्ति फिर जब अपने गांव में जाता था, लोग उसको स्पर्श करते थे, वो भक्त बन जाते थे। और फिर उनमें से कोई अन्य अन्य गांव में जाते थे, वो भक्त बन जाते थे। काश हमारे लिए भी प्रीचिंग इतनी आसान होती। हम लोगों को साल भर घिसना पड़ता है, तब 2-4 लोग भक्त बनते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रचार इतना तीव्रता से बढ़ रहा था, पूरे भारतवर्ष में कृष्ण भक्ति की लहर दौड़ गई। और हम इतिहास में भी देखते हैं, यद्यपि गौड़ीय वैष्णव इस इतिहास को पहले से जानते हैं, लेकिन उनके समकालीन भी, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन भी कितने सारे वैष्णव उस समय पर जन्म लिए। ये चैतन्य महाप्रभु की पोटेंसी थी। श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरुमास तो यहां तक बताते हैं कि विदेशों में भी उस समय पर ऐसे दार्शनिक पैदा हुए जिन्होंने आध्यात्म की प्रचार किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष शक्ति थी। और उसी धारा को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी षड गोस्वामियों ने आगे बढ़ाया। षड गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को लिपिबद्ध किया। उन्होंने शास्त्र लिखे, वृंदावन की खोज की,
वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए ये सिखाया। और बाद में 3 प्रमुख आचार्य श्रीनिवास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर को प्रचार करने के लिए भेजा। ये पहली संकीर्तन पार्टी हमारी प्रेरणा स्रोत है कि कैसे ये जाकर के प्रचार करते थे, और इनके प्रचार के प्रभाव से बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे कई उड़ीसा जैसे कई राज्य पूरे भक्त बन गए, राजा लोग भक्त बन गए। लेकिन उसके बाद गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एक समस्या आई। हमारी परंपरा में कई अपसंप्रदाय जुड़ने लगी। जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति की धारा चैतन्य महाप्रभु ने चलाई थी वो रुक गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर सारे अभद्र क्रियाएं होने लगी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं का धाम लुप्त हो गया। मायापुर धाम में इतनी बड़ी बाढ़ आई कि सारे चैतन्य महाप्रभु के धाम लुप्त हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र का प्रचार किया था, हरे कृष्ण महामंत्र, लुप्त हो गया। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में श्रील प्रभुपाद अपने भजन में लिखते हैं, आबद्र करुणा सिंधु काटिया मोहान नित्यानंद करी छिलो प्रेम वन्यदान। जो कृष्ण प्रेम का समुद्र हमारे लिए दुर्लभ था, नित्यानंद प्रभु ने, उनके अनुयायियों ने उसको काट करके हम तक पहुंचाया बाढ़ के रूप में। लेकिन जादेर कवल छिलो श्रोत प्रवाहिते तादेर बाधिलो माया व्रत परहिते। जिनको जिम्मेदारी थी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, जिनको जिम्मेदारी थी इस स्रोत को, इस कृष्ण भक्ति के प्रचार की धारा को चलायमान रखने के लिए, उन्हीं लोगों ने इस धारा को बंद कर दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखो, कोई संतान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पिता की संपत्ति का कम से कम संरक्षण करे। अगर उसको नहीं आगे बढ़ा सकता है, कम से कम संरक्षण करे। लेकिन उसी को डुबा दे, उसी को बेच करके खा जाए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो उसी तरह चैतन्य महाप्रभु के नाम पर कई अपसंप्रदाय होने लगी। जाति गोसाई नामे तारा प्रवाह बांधिलो आपनी आसिया प्रभु मुहाना खोलियो। और कई अपसंप्रदाय, 13 अपसंप्रदाय भक्ति विनोद ठाकुर नोट करते हैं। ये रजिस्टर्ड थे। जैसे हमारी यात्राओं में रजिस्टर्ड डिवोटीज जाते हैं, फिर अनरजिस्टर्ड भी जाते हैं। तो ये 13 तो रजिस्टर्ड संप्रदाय है, फिर कई अनरजिस्टर्ड अपसंप्रदाय भी थी। लेकिन इनका प्रमुख क्या था? जो चैतन्य महाप्रभु धर्म के पथ पर चले, जिन्होंने शुद्ध भक्ति की धारा दिखाई, जिन्होंने पाप कृत्य इतने सूक्ष्म स्तर पर भी सहन नहीं किया कि छोटा हरिदास ने एक माता के विषय में केवल सोचा मात्र, चैतन्य महाप्रभु ने उनका रिजेक्शन कर दिया, उनका त्याग कर दिया। तो इतने सूक्ष्म स्तर पर भी जिन्होंने धर्म का अवलंबन किया हो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के नाम पर, ऐसे गौड़ीय परंपरा के नाम पर सारे नियम खंडन होने लगे। अवैध संबंध, मांसाहार नहीं, मछली आहार, जलेर फल, और कई ऐसी क्रियाएं जैसे रासलीला का अनुकरण। और यहां तक कि ऐसी भावना थी कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु का परिकीय रस का तत्व समझना है तो दूसरे की पत्नी को भगाना पड़ेगा, तब आप उसके परिकीय रस का स्वादन कर सकते हो। ऐसे अपसंप्रदायों का प्रभाव क्या पड़ा कि जो शिष्टाचारी व्यक्ति थे, जो भद्र व्यक्ति थे, वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बनने में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अब चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ने से कोई फायदा नहीं है। और उस समय पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर कोई आचार्य नहीं थे, लेकिन सामान्यतः भक्ति विनोद ठाकुर के पहले के आचार्य भजनानंदी थे। वो लोग अपना भजन करते, विरह में रहते, और ऐसा नहीं कि कृत्रिम रूप से करते थे। वो स्वभावतः श्री राधा कृष्ण के विरह में इतने निमग्न रहते थे कि उनको बाह्य जगत का बोध ही नहीं रहता था। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आए, तब उन्होंने इन अपसंप्रदायों से लड़ाई की। इन्होंने अपसंप्रदायों का खंडन करने के लिए कई पुस्तक लिखी, और उनकी शिक्षाओं को खंडन करने के लिए उन्हीं की भाषा में प्रचार करना शुरू किया। जैसे कई अपसंप्रदाय हैं, आउल बाउल लेरा लेरी करता भाजा सहेजिया सखी बेखी स्मार्त जाति गोसाई, और सबके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने सिस्टमैटिकली खंडन किया। जैसे बाउल अर्थात जैसे कव्वाली होती है,
वैसे वो लोग गाते थे, सबको इकट्ठा करते थे और अवैध संबंध करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी ट्यून को लेकर के, उसी सिस्टम को लेकर के बाउल संगीत लिखा, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रमाणित शिक्षाएं दी। तो कई बार होता है ना, हम लोग यूथ प्रोग्राम में या कहीं पर जाते हैं, बॉलीवुड ट्यून में हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, तो यूथ को एकदम रोमांच आ जाता है। वास्तव में ट्यून कोई भी हो, जा तो हरिनाम रहा है। तो उस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने कई कई ऐसे उपाय किए जिससे अपसंप्रदायों का खंडन हो। और तब उन्होंने कई नामहट्ट की स्थापना की। उन्होंने प्रचार कार्य के लिए कई छोटे छोटे केंद्र बनाए और अकेले ही इन सब केंद्रों का संचालन कर रहे थे, अलग अलग लोगों को एम्पावरमेंट दे करके। उन्होंने कई किताबें लिखी, 100 से ज्यादा ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर ने अकेले ने लिखे, कई रिसर्च की और कई ऐसे बाबाओं को भी परास्त किया जो अपने आप को भगवान बताते थे। ये सारा विषय बड़ा विस्तृत है, लेकिन फिर भी वो ये महसूस कर रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं असमर्थ हूं। ये वैष्णव की विनम्रता होती है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं सारा कार्य स्वयं सिद्ध नहीं कर सकता, और इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से। उस समय पर वो जगन्नाथपुरी में ही रहा करते थे, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और उसी के लिए उनको जगन्नाथ मंदिर के संचालन का भार भी दिया गया था। वो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे अद्वैत आचार्य ने भगवान को आवाहन किया था कि आप आइए, आप ही इस कलयुग में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हो। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने और रिफाइंड प्रार्थना की। उन्होंने बोला, भगवान मैं जानता हूं कि कलयुग में आप बार बार अवतार नहीं लेते हो, आप पहले ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ चुके हो। मैं आपके व्यवस्था को खंडन नहीं करूंगा। ये भक्त का भावना होती है। भगवान कृष्णा's प्लान इज माय प्लान, ये डिवोटी का एटीट्यूड होता है। तो भक्त के भावना के अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मैं आपके उद्देश्य का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन एक आपकी किरण भेज दीजिए, एक आपकी शक्ति पुंज भेज दीजिए जो आपके प्रचार को, आपके आंदोलन को आगे बढ़ाए। और यही प्रार्थना के फल स्वरूप ए रे ऑफ विष्णु भक्ति विनोद ठाकुर के घर में 6 फरवरी 1874 को दोपहर 3:30 बजे, भक्ति विनोद ठाकुर का घर है जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ बल्लभ गार्डन के बीच में, और उस पवित्र धाम में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म लेते हैं। बड़े ही विलक्षण पुत्र हैं। जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, बाद में जब श्री गौड़िया मठ की स्थापना उस स्थान पे हुई और कंस्ट्रक्शन के लिए उसको खोदा गया, तो स्थान से चंदन की महक आ रही थी। ऐसे पवित्र स्थान पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जन्म लेते हैं। और पद्म पुराण में यह व्याख्या भी आती है कि कलयुग में चारों संप्रदायों का प्रचार, जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौरनिताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो पद्म पुराण में ये उल्लेख भी आता है कि कलयुग में चारों संप्रदाय का प्रचार जगन्नाथपुरी से प्रभावशाली रूप से प्रसारित होगा। यद्यपि चारों संप्रदाय के हेडक्वार्टर्स अलग अलग हैं, जैसे हम जानते हैं मध्व संप्रदाय का उडुपी है या श्रीरंगम श्री संप्रदाय का है, ऐसे अलग अलग उनके केंद्र हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी से उन संप्रदायों का मुख्य प्रभावशाली प्रचार शुरू होगा, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। और वो वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने करके बताया। नहीं तो इन चारों संप्रदाय का प्रचार लगभग छुप सा गया था। और इसीलिए जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब मायापुर में अपने हेडक्वार्टर्स बनाए, तो जो लोगों ने मायापुर में दर्शन किया होगा उन्होंने देखा है कैसे गांधारवी का गिरिधारे के चारों ओर 4 संप्रदाय के आचार्यों की प्रतिष्ठा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने की है। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय केवल मध्व संप्रदाय के प्रचार के लिए नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से शिक्षा लेकर के सारातिसार इस संप्रदाय में दिया है। तो ये भी देखने के लिए मिलता है। जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़ती है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शरीर पर वो एक ब्राह्मण थ्रेड की तरह, एक यज्ञोपवीत की तरह लिपटी हुई थी। और ये देख करके भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए। जब उनकी कुंडली दिखाई गई तो ज्योतिषी ने बोला कि अगर ये कुंडली कोई मध्वाचार्य संप्रदाय के आचार्य को मिलेगी तो वो तुरंत अपना पद छोड़ करके इनको अपना आचार्य बना देंगे। और उन्होंने बोला कि ऐसे जो महान व्यक्तित्व हैं
ये मेरी गणना के अनुसार पूरे विश्व की दृष्टिकोण को बदलने की सक्षमता रखते हैं। ये भक्तिविनोद ठाकुर का वो देखा था। उनका सोम बड़ा स्ट्रांग था। जिनका सोम बड़ा स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है, वो प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं। उसके बाद शनि बहुत प्रबल है। अब लोग डर जाते हैं, अरे शनि प्रबल है, लेकिन भक्तों के लिए शनि अच्छा है, क्योंकि वैराग्य पैदा करता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर की कुंडली में शनि बड़ा प्रबल था। इसका मतलब वो आगे जाके सन्यासी बनने वाले थे। हर व्यक्ति नहीं बनता है। केतु 12वें घरे में था, जिसका मतलब था कि वो एक शुद्ध आत्मा है, वो एक नित्य सिद्ध है। और 32 लक्षण जो महापुरुष के होते हैं, जैसे उनकी भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती थी, अन्यत्र बहुत सारे 32 लक्षण होते हैं, वो सारे उनके शरीर में थे। 6 मास बीत गए। भक्तिविनोद ठाकुर अपने घर में इस शिशु का लालन पालन कर रहे हैं। रथ यात्रा का समय आता है। फरवरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म और लगभग जुलाई में रथ यात्रा। रथ यात्रा के समय पर भगवान जगन्नाथ का रथ ठीक उनके घर के सामने आकर के रुक जाता है और 3 दिन तक वहीं खड़ा रहता है। तब भगवती देवी ये सोचती हैं कि हमको इस शिशु को ले जा करके जगन्नाथ का आशीर्वाद दिलाना चाहिए। जब जगन्नाथ का आशीर्वाद दिलाने के लिए रथ पर ऊपर जाती हैं, तो अपने आप जगन्नाथ की माला टूट करके उस शिशु के ऊपर गिर जाती है। और ये देख करके सब लोग जय जयकार करने लगते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर भी समझ जाते हैं ये वही शिशु है जिसके लिए मैंने श्री जगन्नाथ से प्रार्थना की थी। इसलिए ये तो जगन्नाथ का प्रसाद है, ये तो जगन्नाथ की कृपा है। लेकिन जगन्नाथ का प्रसाद तो डायरेक्ट नहीं आता, वो तो विमला देवी को पहले अर्पित होता है। वो भी बड़ा सिद्धांत है, बड़ी लीला है कि कैसे पार्वती एक बार प्रार्थना करती हैं तो विमला देवी के पास वो प्रसाद जाता है और फिर हमारे पास आता है। इसलिए उसी रथ पर इस शिशु का अन्नप्राशन होता है और भक्तिविनोद ठाकुर इसका नामकरण करते हैं विमला प्रसाद। तो शायद इतिहास में एक ही मात्र शिशु होगा जिसका अन्नप्राशन सेरेमनी जगन्नाथ के सामने, जगन्नाथ के रथ के ऊपर ही हुआ था। और जैसे ही अन्नप्राशन हुआ वैसे ही रथ चलने लगा। तो सभी लोग समझ गए कि एक विशेष जगन्नाथ के भक्त हैं। इसके बाद ये थोड़े और बड़े हुए, 4 वर्ष के हुए। तो हम लोग ये लीला जानते हैं कैसे एक दिन इन्होंने आम खा लिया और जैसे ही आम खा रहे थे तो भक्तिविनोद ठाकुर आकर के बोलते हैं कि अरे आप आम खा रहे हो, आपने तो भगवान को भोग नहीं लगाया। ये 4 वर्ष का शिशु उसको इतनी तीव्रता से लेता है, इतनी गंभीरता से लेता है कि जीवन भर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आम का आस्वादन नहीं किया। इसलिए सिद्धांत में प्रगाढ़ है। हम लोग भक्ति सिद्धांत में अगर प्रगाढ़ होना चाहते हैं तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए। कभी भक्त लोग लाते भी थे, आम ला करके देते थे, तो हमेशा ये बोलते थे नहीं नहीं, आई एम एन ऑफेंडर, मैं अपराधी हूं भगवान के चरण कमलों में, क्योंकि मैंने एक आम बिना भोग लगा करके खा लिया। अब ये नियम का अगर हम अनुसरण करें तो शायद हम भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ सारे आइटम ही खाए हैं। और इतने गंभीर थे कि भक्तिविनोद ठाकुर से कई बाबाओं की, कई साधुओं की पहचान थी। घर में कई बाबा आते थे, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते थे इनको प्रणाम करो। तो ये छोटा 4 साल का बालक प्रणाम नहीं करता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर को बड़ा गुस्सा आता था, अरे तुम प्रणाम क्यों नहीं करते हो? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाल्यकाल में, ये बिमला प्रसाद बोलता है, मैं सहजियाओं को प्रणाम नहीं करता। तब भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, अरे बाप रे, ये तो मैं जिनसे लड़ रहा हूं, ये 4 साल की आयु में समझ गया। 7 साल की आयु में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पत्रिका शुरू की, सज्जन तोषणी। उस सज्जन तोषणी पत्रिका का एडिटिंग करते थे ये 7 साल की आयु में। और भगवत गीता 7 साल की आयु में कंठस्थ थी, 700 श्लोक। और साथ ही साथ तब भक्तिविनोद ठाकुर कलकत्ता शिफ्ट हुए थे, तो अपने घर का निर्माण कर रहे थे। एक कूर्मशिला निकली, तो उस कूर्मशिला की पूजा भी ये 7 साल की आयु में करते थे। और ये गंभीरता देखते हुए भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको हरिनाम दीक्षा और नरसिंह मंत्र दीक्षा 7 साल की आयु में दी। आगे बढ़े, भक्तिविनोद ठाकुर ने इनको स्कूल भेजा। स्कूल जब जाते थे तो टीचर जब लेक्चर देती थी तो बच्चे नोट्स बनाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने मेधावी थे कि उनको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी। वो जो सुनते थे उनको याद हो जाता था। तो टीचर एक बार उनको बोलती है, तुमको नोट्स बनाना चाहिए, तुम फिर भी नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? तो बोला ठीक है। तो उन्होंने अपना शॉर्ट हैंड स्टाइल निकाला, जो हम लोग आजकल, अभी तो के टेप रिकॉर्डर्स ये सब रिकॉर्डिंग हो गई है, पहले जो प्रेस
जो पत्रकार होते थे वो शॉर्ट हैंड स्टाइल में नोट्स लेते थे, जिससे एज इट इज न्यूज वो लोग लिख सकें शॉर्टकट में, बुलेट पॉइंट्स या हिंट्स में। तो उन्होंने अपना शॉर्ट हैंड स्टाइल निकाला जिसमें वो केवल 2 या 3 लाइन में सब कुछ लिख लेते थे जो टीचर ने 2 घंटे के प्रवचन में बताया है, और फिर टीचर को ही बता देते थे कि आपने कल ये पॉइंट मिस कर दिया तो आपको आज ये कवर करना चाहिए। तो टीचर घबरा गई और बाकी टाइम वो भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तकें पढ़ते थे। जब तक 10वीं कक्षा तक आए तो इतने मेधावी हो गए कि वो ग्रेजुएट्स को पढ़ाने की क्षमता रखते थे। कभी कभी टीचर्स को कुछ समझ में नहीं आता तो ये 10 साल के बच्चे को आकर के टीचर्स पूछते थे कि ये पुस्तक में हमको ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह मेधावी होने के साथ 1885 में उनका संस्कृत, गणित, ज्योतिष इत्यादि पे इतना कमांड हो गया था कि उनको नाम दिया गया सिद्धांत सरस्वती, जिसके ऊपर सरस्वती की इतनी अनुकंपा हो कि कोई भी सिद्धांत को तुरंत समझ जाए। तो ये उपाधि उनको सिद्धांत सरस्वती उनकी मेधा के कारण मिली। उसी के साथ उन्होंने सूर्य सिद्धांत के ऊपर अपनी टीका लिखी, जो कि ज्योतिष गणना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने निर्णय किया कि इनको हम हमारा हेडमास्टर बना देंगे। बस वही समय पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हाथ जोड़ लिए कि अब ये फंसने की शुरुआत हो रही है। अच्छी नौकरी मतलब फिर आगे विवाह इत्यादि की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपनी स्टडीज छोड़ दी। 17 साल की आयु में एक अपनी ही टोली बनाई, एक क्लब बनाया और उसका नाम दिया अगस्त असेंबली। शर्त क्या थी कि इस क्लब के मेंबर्स आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उसमें से अंत तक एक ही व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ, जो थे स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। थोड़े और बड़े हुए, भक्ति विनोद ठाकुर काफी वृद्ध हो चुके थे क्योंकि उनके कई संतानें थी और वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती लगभग बाद में ही हुए थे। तो एक बार मेदिनीपुर में एक बड़ा डिबेट होने वाला था, जहां ब्राह्मणों ने ये डिबेट रखा था और इस वाद विवाद में वो वैष्णवों को हराना चाहते थे। वैष्णवों के पक्ष से, विशेषतः गौड़ीय वैष्णवों के पक्ष से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का आमंत्रण था, लेकिन वह अस्वस्थ थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजते हैं और वहां जाकर के जो व्याख्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुरू करते हैं, वैष्णवों को ही संकोच होने लगा कि ये किसकी पार्टी में है, ये ब्राह्मणों की पार्टी में है कि हमारी पार्टी में है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों का ग्लोरिफिकेशन करना शुरू किया। ब्राह्मण तो बड़े, उनके पूरे हृदय खुल गए, बड़े सम्मान करने लगे। और जब उन्होंने ब्राह्मणों का गुणगान समाप्त किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे वैष्णव ब्राह्मणों से श्रेष्ठ होते हैं। और जब वो प्रवचन दिया तो सारे लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों की रज लेने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब 1898 में भक्ति विनोद ठाकुर अपनी सारी गतिविधियां बंद करके नवद्वीप गोद्रुम में निवास करने के लिए जाते हैं। और यहां से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जीवन में एक नई दिशा आती है। यहां गोद्रुम में वो प्रथम बार दर्शन करते हैं श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। जन्म से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने पंडित थे, इतने मेधावी थे, श्रुतिधर थे, सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न थे, और वो अपनी आंखों के सामने एक ऐसे बाबा जी को देखते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, जिनकी दृष्टि भी बड़ी कमजोर हो गई थी, जो देख भी नहीं पाते थे। टटोल टटोल के गौर किशोरदास बाबा जी महाराज चलते थे, लेकिन जो भजन में बड़े परिपक्व हैं। ये देख करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती को भारी आकर्षण उनसे हुआ करता था। एक दिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रवचन देने के लिए बोला, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो समय पर भी बिमला प्रसाद ही थे, वो प्रवचन दे रहे थे। और प्रवचन के बीच में उन्होंने देखा कि एक बाबा जी छुप करके बैठा हुआ है, उसने अपना चेहरा भी ढका हुआ है और वो सिसक सिसक के रो रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना प्रवचन बंद किया और वो जा करके उस बाबा जी के पास जा करके देखते हैं। जब उनकी उत्तरी उठा करके देखते हैं तो देखते हैं वो कौन है, श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। और जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको स्पर्श करते हैं, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एक अभूतपूर्व भाव में डूब जाते हैं। वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को स्मरण करते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी के उस भाव को स्मरण करते हैं जहां वो राधा रानी को स्मरण कर रहे थे। बाप रे बाप, ये देख करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लगता है मेरा पूरा पांडित्य बेकार है, मैंने जो कुछ पढ़ा, मैं जो कुछ बोल रहा हूं सब कुछ व्यर्थ है,
क्योंकि मेरे हृदय में एक लेश मात्र भी प्रेम नहीं है जो ये बाबा जी महाराज के अंदर है। वो भक्ति विनोद ठाकुर को जाकर के बोलते हैं कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। तब भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अब तुम गुरु को समर्पण करने के लिए तैयार हो, तुम्हें जाना चाहिए और दीक्षा लेनी चाहिए श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से। देखो हरिनाम इत्यादि तो उनका पहले ही हो गया था, लेकिन यहां समर्पण जरूरी था। और भक्ति विनोद ठाकुर ये भी दिखाना चाहते थे कि जो जाति गोसाई परंपरा के विरुद्ध वो लड़ रहे हैं और वो अपने ही पुत्र को अगर वैष्णव समाज का नेता बना देते हैं तो कहीं ना कहीं वही जाति गोसाई परंपरा हमारे ही परंपरा में फिर शुरू ना हो जाए। तो इसीलिए वो चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जाएं और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से दीक्षा के लिए प्रार्थना करें। हम ये लीला जानते हैं कैसे कई बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते हैं दीक्षा लेने के लिए और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उनको वापस भेज देते। एक प्रवचन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे थे कि एक बार तो उनको बड़ा विस्मय हुआ, कह रहे साधु लोग तो इतने करुणावान होते हैं, ये मुझे दीक्षा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन जब बार बार मुझे भेजा मेरे गुरु महाराज ने, तब मेरे अहंकार का दमन हुआ, और जब अहंकार जाता है तभी गुरु की कृपा जीवन में आती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब पूर्ण समर्पण किया और उन्होंने गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज को बोला कि अगर आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे तो मैं जीवन का त्याग कर दूंगा, उस समय बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा के समय बड़ा सुंदर नाम दिया, श्री वार्षभानवी देवी दैत दास। अब देखने के लिए जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, पढ़े लिखे विद्वानों को भी ये नाम बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा ये मतलब क्या है। लेकिन गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उनको नाम देते हैं श्री वार्षभानवी देवी, जो वृषभानु नंदनी श्रीमती राधा रानी है, वो देवी के दैत प्रिय श्री कृष्ण के दास। तो ये नाम उनको प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर एक चतुष्पाठी शुरू की जहां वो शिक्षा देने लगे। और गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ने बोला कि देखो स्मार्त लोगों का अपना पांचांग है, लेकिन हम गौड़ीय वैष्णव की अपनी पंजिका नहीं है, तो क्या आप एक हमारे कैलेंडर बना सकते हैं। तो जो गौराब्द कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं, जिनमें से हम सारी हमारी तिथियों का अनुसरण करते हैं, वो भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनाया। 1902 में वो पुरी वापस गए और पुरी में अपसंप्रदायों से उन्होंने बड़ा युद्ध किया। वहां पर कई चैतन्य महाप्रभु के नाम पर वहां भी अपसंप्रदाय शुरू हो गई थी, उनका खंडन किया। और बाद में नवद्वीप में आकर के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो स्थापित किया। जब वो ये प्रवचन दे रहे थे तो कई वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से चैतन्य महाप्रभु के विषय में बता रहे थे, और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उनका प्रवचन सुन रहे थे। तो एक भक्त ने पीछे से देखा कि अरे बाबा जी महाराज आप इनका प्रवचन सुन रहे हो, आपका शिष्य प्रवचन दे रहा है। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते नहीं नहीं, ये तो मेरा प्रभु है, अमर प्रभु, ये मेरा प्रभु है, ये मेरा दास नहीं है, मेरा शिष्य नहीं है, और मुझे बड़ा गर्व है कि ये इस प्रकार से प्रचार कर रहा है। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज बाद में बताते भी हैं अपने अनुयायियों को कि जिस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह उनका वैराग्य है, ये बोलने में 1% भी संशय नहीं होना चाहिए कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने अपनी विशेष शक्ति का संचार इनके अंदर किया है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और इसीलिए गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज अपनी सारी शक्तियां, अपना सारा आशीर्वाद उनको अपने आप ही दे दिया करते थे। अब आप सोचिए, जो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज से कोई आशीर्वाद मांगता, उसको आशीर्वाद में क्या बोलते थे? तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। एक बार एक वृंदावन चंद्र लक्षर नाम का व्यक्ति था, वो जबरदस्ती गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के पैरों को छूने की कोशिश कर रहा था। गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज इतने नाराज हो गए, बोलते हैं तू करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक में यातना भोगेगा। ये आशीर्वाद उन्होंने दिया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इतना प्रेम गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज करते थे, एक दिन वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बुलाते हैं और अपने दोनों पैर उनके सिर पर खुद ही रख देते हैं। ये गुरु की प्रसन्नता होती है। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, आप सेवा इस तरह कीजिए कि अपने आप वो आशीर्वाद आप तक आ जाए। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रचार तो कर ही रहे थे, उसके साथ वो एक बहुत बृहत व्रत लेते हैं जहां वो 100 करोड़ हरिनाम जप करने का निश्चय करते हैं। वो 100 करोड़ हरिनाम जप करने के लिए 9 वर्ष तक मायापुर धाम में जप करते हैं। प्रतिदिन 3 लाख नाम हरिदास ठाकुर के समान, और एक बार भोजन करते थे अपने दोनों हाथों को पीछे करके,
जितना एक बार मुख में भोजन आ जाए उतना ही भोजन वो आस्वादन करते थे। कई भक्त बोलते हैं हम भी एक ही बार तो भोजन करते हैं, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक बार शाम, एक बार रात, तो हम भी एक बार ही करते हैं। अपना भजन संपूर्ण करने के बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से एक पत्र प्राप्त करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद को पत्र मिला था, ठीक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव के पहले, उसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी भक्ति विनोद ठाकुर से पत्र मिला था। और अब ये पत्र में विशेष आदेश भक्ति विनोद ठाकुर देते हैं। पहला आदेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते हैं, तुम देवी वर्णाश्रम की स्थापना करो, क्योंकि आगे वाली पीढ़ियां बाबा जी बनने के लायक नहीं है। तुम देवी वर्णाश्रम की स्थापना करो। दूसरा, तुम प्रीच टू द मासेस, तुम समूहों को प्रचार करो, एक दो जनों को नहीं, जाओ शहरों में जाओ, बड़े बड़े प्रचार करो, पांडाल प्रोग्राम करो। तीसरा, किताबों का प्रकाशन करो, पुस्तकें लिखो, जितनी ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन कर सकते हो खुद भी लिखो और पूर्ववर्ती आचार्यों की पुस्तकें भी छापो। चौथा, मायापुर धाम को तुम डेवलप करो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का असली मायापुर धाम अंतरदीप लुप्त हो गया है और लोगों ने नवदीप को ही मायापुर जानना स्वीकार कर लिया है, तो ये भी करो। और पांचवा, नवदीप मंडल और ब्रज मंडल परिक्रमा शुरू करो, जिससे लोग जो अपनी गृहस्थी में माया में फंसे हुए हैं कम से कम कुछ हफ्तों के लिए धाम में रह करके भक्ति का अनुसरण करें। कुछ ही दिनों बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपना देह त्याग कर देते हैं और यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, उनकी बहुत दुख था। तो यहां पर नेक्स्ट ये जो चित्र है, इसके पहले ये भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि का ओरिजिनल चित्र है। जब उनको समाधि दी जा रही है तो सभी लोग एकत्र हुए। 1914 जून 23 को उनको समाधि दी गई और एक साल के भीतर श्रील गौर केशवदास बाबा जी महाराज को भी समाधि दे दी गई। उन्होंने भी ये जगत छोड़ दिया। ये समाधि का भी आप लीला जानते हैं, कैसे उनका जब देह त्याग हुआ कई बाबा जी इकट्ठे हो गए, सब चाहते थे कि गौर केशवदास बाबा जी महाराज की समाधि उनके मठ में बनेगी तो काफी चंदा आएगा, काफी दर्शनार्थी आएंगे। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती चुनौती देते हैं कि जिसने व्यभिचार ना किया वो आगे आ जाए, जिसने एक साल, एक महीना, एक दिन भी ना किया वो आगे आ जाए। तो सब की सब पीछे हट गए और गौर केशवदास बाबा जी महाराज के उस पवित्र देह को अपने हाथों से उठा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समाधि देते हैं। पहले वो समाधि कोला द्वीप में थी, बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उसको स्थानांतरित करके आज आप जो गौड़िया मठ देखते हैं मायापुर में, वहां पर एस्टैब्लिश की। लेकिन जब कोई उनसे बाद में पूछता था कि क्या ये आपके गुरु महाराज की समाधि है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का चेहरा नीचे हो जाता था, उनकी नजरें झुक जाती थी और बोलते थे कि मुझे मेरे गुरु का नाम लेने में भी शर्म आती है, क्योंकि मेरे गुरु सिद्ध थे, महाभागवत थे, राधा कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न थे और मैं इतना दुराचारी हूं, सांसारिक वस्तुओं में लगा हुआ हूं, तो मुझे मेरे गुरु का नाम उच्चारण करने में शर्म आती है। ऐसे उनका भाव गौर केशवदास बाबा जी महाराज के लिए था। कई दिन विलाप करते रहे। एक रात उनको स्वप्न आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे अनुयायियों के साथ, गौर केशवदास बाबा जी महाराज के साथ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, सब उनके स्वप्नों में आते हैं और बोलते हैं आप प्रचार करो, हम सब आपके साथ हैं, आप संन्यास ग्रहण करो। तो ये जब निर्देश उनको प्राप्त हुआ तो उनको थोड़ा संकोच भी हो रहा था कि वास्तव में ये निर्देश मेरे लिए है कि नहीं है। तो जब वो इस तरह विचार कर ही रहे थे तो एक पत्ते पर या एक पब्लिश्ड पेपर पर, आई एम नॉट श्योर, एक प्रिंटेड पेपर उनके पास उड़ता हुआ आया और वो पेपर जैसे ही उन्होंने पकड़ा हाथ में, उसमें 2 श्लोक लिखे हुए थे जो स्क्रीन पर हैं यहां पर। नेक्स्ट, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्व निर्धान, वैष्णव कृत्य और वैष्णव आचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार और वैराग्य शिक्षण। ये चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है गोस्वामी गण को कि कैसे आपको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, वैष्णवों के कैसे आचरण होते हैं ये आपको सिखाना है, कैसे आपको कृष्ण सेवा का प्रचार सब जगह फैलाना है, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना है और वैराग्य का प्रदर्शन अपने उदाहरण से करना है। ये ठीक वही निर्देश थे जो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको पत्र में लिख के दिए थे। और जब ये पत्र उड़ता हुआ उनके पास ऐसे अकस्मात आ गया तो वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु उनसे यही चाहते हैं और उसी के साथ उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा के दिन, जो चैतन्य महाप्रभु का 432वां आविर्भाव दिवस था,
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सन्यास ग्रहण किया। उस समय पर कोई हमारी परंपरा में सन्यासी नहीं थे, इसलिए वो सन्यास किसी से ले नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने ही देवी वर्णाश्रम शुरू किया। तो समवेयर इट हैज टू स्टार्ट। तो उन्होंने गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज के सामने, उनके चित्रपट के सामने सन्यास ग्रहण किया। लेकिन यह सन्यास वास्तव में प्रचार के लिए था, और इसीलिए उन्होंने इस प्रचार कार्य को सन्यास के माध्यम से सुचारू किया। नेक्स्ट 2-3 स्लाइड आगे। नेक्स्ट। हाँ, ये उनका हेडक्वार्टर्स बना, जो चंद्रशेखर आचार्य का घर था मायापुर धाम में। यहां पर चैतन्य महाप्रभु बचपन में खेला करते थे, और इसको इसलिए मासिर बाड़ी भी बोला जाता है। उसी को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना हेडक्वार्टर्स बनाया, गांधारवी का गिरिधारी की एस्टैब्लिशमेंट की, और उधर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू की। उसी के साथ कलकत्ता में उल्टा डंगा जंक्शन रोड पर उन्होंने अपना सेकंड गौड़ीय मठ स्टैब्लिश किया, जहां पर बहुत प्रतिष्ठित लोग कैलकाटा के आकर के उनके अनुयायी बनने लगे। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। आज भी सुभाष चंद्र बोस के जो रूम है उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का फोटो लगा हुआ है। कलकत्ता में वो आज म्यूजियम है, और सुभाष चंद्र बोस उस फोटो के नीचे लिखते हैं कि ये एक विलक्षण सन्यासी थे जिनसे मैं प्रेरणा लेता था। उसके साथ सखी चंद्र न्याय, जगत बंधु दत्त इत्यादि बहुत सारे शिष्य उनको बने, और उन्होंने सन्यास दिया अपने शिष्यों को। पहले सन्यासी भक्ति प्रदीप तीर्थ महाराज, गौड़ीय सिद्धांत को स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने एक विशेष लोगो बनाया। आगे जाते जाइए, लोगो बनाया। नेक्स्ट लोगो तक आ जाइए। यस, ये लोगो भी बड़ा स्पेशल है, क्योंकि इस लोगो में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों मार्ग को रखा है, साधन मार्ग को और राग मार्ग को। क्योंकि केवल अगर राग मार्ग रहेगा तो व्यक्ति सहजिया बन जाएगा, और केवल अगर साधन मार्ग रहेगा तो क्या होगा, व्यक्ति शुष्क बन जाएगा। तो उन्होंने दोनों मार्ग दिए, एक तो भागवत विधि के अनुसार श्रवण कीर्तन, और दूसरा पंचरात्र विधि के अनुसार विग्रहों की अर्चना। अब जब विग्रहों की अर्चना करनी है तो ब्राह्मण चाहिए, और ब्राह्मण चाहिए तो उन्होंने ये सेकंड इनिशिएशन शुरू किया। वास्तव में ये एक प्रीचिंग टेक्निक थी। हमारी परंपरा में कभी सेकंड इनिशिएशन था ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर से शुरू करके कोई भी यज्ञोपवीत नहीं पहनते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने केवल स्थानीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये द्वितीय दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा शुरू की, जहां उन्होंने यज्ञोपवीत दिया और लोगों को सेवा करने का अधिकार दिया। उनका प्रिंसिपल था युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का अर्थ है हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। एक बार वो प्रवचन कर रहे थे वैराग्य के ऊपर, सब लोग नोट्स बना रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन। और जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छत पर उनका कक्ष था, वहां पर चले गए। तो एक शिष्य ने देखा कि कुछ सामान छूटा है, तो वो लौटाने के लिए गुरु महाराज के कमरे में गया। तो जैसे ही वो कमरे में गया तो वहां उसने देखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक बंदर से लड़ाई कर रहे हैं अपनी छड़ी से। देखा ये क्या हो रहा है, बंदर से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? तो बंदर के पास कुछ केले थे जो बंदर चुरा के ले जाना चाह रहा था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती उससे केले छुड़ा रहे थे। तो ये शिष्य ने सोचा अभी तो वैराग्य के ऊपर प्रवचन देके गए, फिर ये केले क्यों छुड़ा रहे हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, देखो ये केले मेरे नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी के केले हैं। तो मैं भगवान की सेवा के लिए बंदर से भी लड़ाई कर सकता हूं, ये युक्त वैराग्य है। तो ये उन्होंने युक्त वैराग्य शिक्षा दी। उनकी व्यास पूजा मनी कटक में उन्होंने प्रभुपाद टाइटल एक्सेप्ट किया, और प्रचार कार्य के लिए कई वॉइस रॉयस, कई गवर्नर्स को, अंग्रेजों को भी मंदिर में बुलाया करते थे, जो कि सामान्यतः निषेध होता था। आगे जाके उन्होंने नवदीप मंडल परिक्रमा शुरू की, और इस नवदीप मंडल परिक्रमा में उनके प्रवचन में उन्होंने बताया कैसे अपसंप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के ऊपर बोझ है। वहां के स्थानीय गोसाई लोगों ने कई लोगों को भेजा उनको मारने के लिए, उनका पंडाल तोड़ दिया, और उनको मारने के लिए जब पीछे भागे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक शिष्य उनके साथ भागे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती से अनुरोध किया कि गुरु महाराज कृपया करके आप मेरे वस्त्र ले लीजिए और आपके सन्यास वस्त्र मुझे दे दीजिए। अब उस समय पे सोशल मीडिया होता तो यह भी संभव नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो उन्होंने वस्त्र अदला बदली किए, और जो मारने के लिए आए थे वो लोग कंफ्यूज हो गए, उस शिष्य के पीछे भागने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती को समझ करके। बाद में वो शिष्य किसी तरह बच करके आ गया, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने रोने लगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी वजह से बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए तुम रो रहे हो,
तो वो शिष्य बोलता है, गुरु महाराज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि मुझे ये कष्ट हुआ, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं आपके लिए अपने प्राण त्याग नहीं कर पाया, मैं बच के वापस आ गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती इतने खुश हुए, उनको सन्यास दिया और उनको नाम दिया भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, जिन्होंने बाद में जाके प्रभुपाद को सन्यास दिया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रेस को बृहत मृदंग कहते थे। ये हम लोग जानते हैं कि कैसे मृदंग की ध्वनि कोई स्थान पे जाती है, लेकिन अगर पुस्तक प्रकाशन होंगी तो दूर दूर तक चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार होगा। इसलिए उन्होंने अपने काल में 4 प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की। आप लोगों को सोच करके सुन करके आश्चर्य होगा कि अभी इस्कॉन इतना बड़ा है, हमारी 4 ही बीबीटी है और भारतवर्ष में केवल 1 ही बीबीटी है जहां प्रिंटिंग होती है। लेकिन उस समय पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 4 प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की। तो लोगों ने पूछा, इतना छापोगे क्या? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, कलकत्ता मात्र में इतने सैकड़ों न्यूज़पेपर चलते हैं जागतिक न्यूज के लिए, हम तो आध्यात्मिक जगत की न्यूज छाप रहे हैं, हम तो हर पल पर एक एक पुस्तक, एक पत्रिका छाप सकते हैं, तो 4 तो बहुत कम है। 18 साल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 6 गोस्वामियों की सारी किताबें, भक्ति विनोद ठाकुर की सारी किताबें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, चैतन्य भागवत पे अपनी टीका, चैतन्य चरितामृत पे अपनी टीका, ब्रह्म संहिता पे टीका और श्रीमद् भागवत पे अपनी टीका लिख के प्रकाशन कर दी। वो एक पत्रिका चलाते थे द हार्मोनिस्ट, जिसमें शिला प्रभुपाद ने वो कविता लिखी थी जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बहुत प्रिय हुई थी। एब्सोल्यूट इज सेंशिएंट, दाउ हैज प्रूव, इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज मूव्ड। और ये सुन करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती समझ गए थे कि शिला प्रभुपाद उनके भाव को समझते हैं। 64 गौड़ीय मठ की स्थापना हुई, जिसमें से 2 विदेश में थे, एक लंदन में और एक बर्मा में। ये 64 गौड़ीय मठ कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए आगे बढ़े। एक दिन की बात है, ये पुरानी बात है कलकत्ता की, मायापुर की। एक दिन जब गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज प्रकट थे, उनकी आंखें बहुत खराब हो गई थी। तो उस समय पर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि मैं देख नहीं पा रहा हूं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, देखिए मैं आपको कलकत्ता लेके जाता हूं, वहां पर एक आई स्पेशलिस्ट आपकी आंखें सही कर देगा। तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज ये प्रस्ताव सुनकर ही जाकर के गंगा में कूद गए और 3-4 हफ्ते तक कहीं किसी को दिखे नहीं। तो लोगों ने सोचा कहीं बाबा जी महाराज चले ही तो नहीं गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती खुद डर गए। कई दिन बाद गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज उनको मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैंने क्या गलती की जो आप ऐसे चले गए। बोले, मुझे तुमने कलकत्ता जाने के लिए बोला कैसे? क्योंकि कलकत्ता माया की नगरी है, ना तो तुम कभी जाना ना मैं कभी जाऊंगा। कभी शिष्य मत बनाना, कलकत्ता मत जाना और विषयी लोगों से संगति मत करना। अब मजे की बात यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने तीनों का काम उल्टा किया। कलकत्ता जाकर के अपने हेडक्वार्टर्स बनाए बाग बाजार गौड़ीय मठ, शिष्यों को भी ग्रहण किया और बड़े बड़े गवर्नर्स, अंग्रेज, विषयी लोगों को मिलकर के प्रचार करते थे, क्योंकि वो गुरु के भाव को समझते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कलकत्ता शहर में घूमने फिरने नहीं जाते थे, वो गौड़ीय मठ में जाते थे। वो विषयी लोगों को संगति करते नहीं थे, उनको अपना संग देते थे और शिष्यों को शिष्य भाव से नहीं, सेवक भाव से सेवा करते थे। इसलिए कोई शिष्य उनको प्रणाम करता था तो हाथ जोड़ के बोलते थे, दासोस्मि, मैं आपका दास हूं। तो ये भाव से वो सेवा करते थे। कई कई जर्मन स्कॉलर्स, गवर्नर्स, कई लोगों को उन्होंने प्रचार किया। आगे जाके उन्होंने बाग बाजार गौड़ीय मठ की स्थापना की। बाद में उन्होंने एक महान प्रदर्शनी मायापुर में दिखाई, डायरोमास, जिसका आइडिया लेके श्रील प्रभुपाद ने बाद में लॉस एंजलिस में डायरोमास बनाए। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां दक्षिण भारत में गए थे, उस सभी स्थानों पे चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह एस्टैब्लिश किए। यह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रोजेक्ट था, जिससे हर स्थान पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोग जाने। और आज आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस्कॉन के माध्यम से, स्पेशली हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के एंडेवर से, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए, जहां जहां उल्लेख है, वहां पर एक सुंदर छतरी मार्बल की बना करके चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह स्टैब्लिश हुए हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की आज्ञा पूरी करते हुए। वो मायापुर वापस आते हैं और योगपीठ के ठीक बगल में एक स्कूल शुरू करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के नाम पर, जो आज भी आप देख सकते हैं। वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर के नाम पर एक स्कूल है। बाद में जाके 25 सन्यासियों को सन्यास देते हैं और पूरे विश्व में प्रचार करने का आदेश देते हैं, जिनमें से बॉन महाराज इत्यादि विदेश में जाते हैं, लंदन में जाकर के प्रचार करते हैं और लंदन में जाकर के किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी तक को मिलकर के प्रचार कर देते हैं।
और यहां तक कि वो जर्मनी चले जाते हैं। उस समय पे हिटलर था। आप हिम्मत देखो इन प्रचारकों की, हिटलर के मेन राइट हैंड मैन को जाकर के प्रचार करते हैं और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो पुस्तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखी थी वो उसको थमा देते हैं और बोलते हैं हिटलर को बोलो ये पुस्तक पढ़े। इतना प्रचार के लिए उनका ये था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती चाहते थे कि लंदन में उसी तरह एक छात्रावास बने और वहां पर स्टूडेंट्स आकर के कृष्ण भक्ति का अनुसरण करें, जिसको हम वॉइस चॉइस बेस के नाम से आज अनुसरण कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ट्रैक बैक करें तो जितने प्रोजेक्ट्स आज हमारे इस्कॉन में चल रहे हैं ये सारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किए थे। ब्रजमंडल परिक्रमा उन्होंने शुरू की, और जब ब्रजमंडल परिक्रमा शुरू की तो जैसा नवद्वीप में हुआ था वैसे ही ब्रज में भी हुआ। गोस्वामियों ने अपने मंदिर बंद कर लिए और ऊपर से पत्थर फेंकने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने प्रचार को आगे करते हैं और आज आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही अनुयायी ये 7 मंदिरों का लालन पालन पोषण सब कर रहे हैं। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती का सिंह गुरु थे। इनका प्रचार देख करके अब संप्रदाय इतनी डर गई कि उस जमाने में 25,000 रुपए की रिश्वत दी थी इनको मारने के लिए, और जिस व्यक्ति को रिश्वत दी थी वो व्यक्ति ही आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती को बोलता है कि आप यहां से भाग जाइए, आपके लिए रिश्वत दी जा रही है, आज मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती मुस्कुराते हैं और बोलते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इसलिए उनको सिंह गुरु बोला जाता था। कई बार उनके प्रचारक जब इधर उधर प्रचार करते, जैसे ढाका से एक खबर आई कि एक ब्रह्मचारी ने प्रचार किया और वो प्रचार करने के माध्यम से लोग इतने अपसेट हो गए क्योंकि उनने स्थानीय साधुओं के बारे में कुछ बोल दिया था कि पांडाल तोड़ दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती आनंदित हो गए कि अरे इस ब्रह्मचारी ने तो मेरे लाखों रुपए का प्रचार कर दिया। यही तो मेरा काम है कि लोगों को अपसंप्रदायों से, पाखंडी बाबाओं से बचा करके शुद्ध कृष्ण भक्ति देना। अब अपने ही घर में समस्या थी। हम गौड़ीय वैष्णवों का प्रमुख स्थान है राधा कुंड, और राधा कुंड में ही जो बाबा जी वेश लेकर के रह रहे थे वही सारे गलत काम कर रहे थे। उनके बैंक अकाउंट्स थे, उनके व्यभिचार चल रहा था। तो वहां खबर फैली कि भक्ति विनोद का लड़का बहुत बड़ा सन्यासी बन गया है और उसने कई जगह पर मंदिर बना दिए हैं और बहुत प्रचार कर रहा है, और वो राधा कुंड में आ रहा है। तो ये सोच करके सारे बाबा जी इकट्ठे हो गए कि चलो देखने जाते हैं भक्ति विनोद का लड़का कैसा सन्यासी लगता है, कैसा उसका वैराग्य है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नेक्स्ट इस तरह राधा कुंड में गए थे, एक कार में सूट बूट पहन करके, और एक शॉफर रखा था उन्होंने प्रॉपर ड्रेस में, और वो शॉफर गाड़ी ड्राइव कर रहा था और एकदम इंग्लिश मैन जैसे केन लेकर के राधा कुंड में उतरे। तो बाबा जियों का एकदम कल्चर शॉक लग गया, ये क्या होता है, ये सन्यासी है। सब लोग घबरा गए। अब अनाउंसमेंट हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन करेंगे। बाबा जी सोचते हैं चलो वेशभूषा जो भी हो, साधु को तो वचन सुनना चाहिए। अब इतना बड़ा पंडित है तो कुछ राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाएगा, अष्टप्रहर स्मरण के बारे में बताएगा। सब बाबा जी इकट्ठे होकर बैठ गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन देना शुरू करते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद के ऊपर। बाबा जी लोग बोलते हैं ये हमको क्या बता रहे हो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं अगर मैं कलकत्ता में होता तो राधा कृष्ण के बारे में बताता, लेकिन तुम लोगों को पहले ईशोपनिषद सीखना जरूरी है, क्योंकि प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। अगर आपके अंदर प्राण है, चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम है, तो आप प्रचार करते, यहां पर बैठ करके अनर्गल कुकृत्य नहीं करते। और उसी भाव से जब श्रील प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से राधा कुंड पे मिलने जाते हैं, तो आप देखिए स्थान क्या है, राधा कुंड। और कौन मिल रहे हैं, 2 हमारी परंपरा के आचार्य मिल रहे हैं। इनके बीच में वार्तालाप क्या होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं मैंने गौड़ीय मठ बनाया, वहां पर कमरों के लिए लड़ाई हो रही है, मेरे जाने के बाद मठ में आगुन जोलबे, आग लगेगी, सब लोग लड़ाई करेंगे, सब खंडित खंडित हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कभी पैसे मिले, कभी धन हो, तो आप पुस्तकें छापना। तो राधा कुंड के तट पर भी चर्चा किसकी हो रही है, प्रीचिंग की चर्चा हो रही है, प्रचार की चर्चा हो रही है। ये हमारी परंपरा का उद्देश्य है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि केवल माला खींचने से आप भगवत धाम नहीं जाओगे, माला बांटने से भगवत धाम जाओगे। ऑफ कोर्स माला करनी भी है, लेकिन प्रचार करने के साथ साथ वो भजनानंदी सबसे अच्छा है जो साथ में गोष्ठ्यानंदी भी हो, वो प्रचार भी करे। और ऐसे प्रचार करते करते भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रभाव इतना बढ़ गया
कि मायावादी लोग उनको देख करके डरने लगते थे। मायापुर में एक तथाकथित बड़ा मायावादी आए, जिनका बड़ा मठ भी है कलकत्ता में, पूरे विश्व में उनकी ब्रांचेस हैं, और वो आकर के अपना सहजिया भाव में नृत्य करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाहर आते हैं और उसको कस के एक थप्पड़ मारते हैं, बोलते तेरा ये सहजिया भाव कलकत्ता में जाके देखा, मायापुर धाम इसके लिए नहीं है। एक बार एक और तथाकथित भगवान आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती को लोगों ने बताया कि ये अपने आप को भगवान बोलते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसके ऊपर कूद गए और उसका दांत खींचने लगे। वो चिल्लाने लगा मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं पहले स्वीकार करो तुम भगवान नहीं हो, फिर तुम्हारा दांत छोड़ूंगा। एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक मायावादी प्रवचन कर रहा है अपने शिष्यों को कि सब कुछ एक है, भगवान भी एक, आप भी एक, ये माया भी एक, सब कुछ एक है। अब संयोग से कुछ आम भक्ति सिद्धांत सरस्वती किसने भेंट में दिए थे। अब वो तो आम खाते नहीं थे, अब गुरुजी आम नहीं खाएंगे तो शिष्य भी नहीं खाएंगे, तो कोई नहीं खा रहा था, वो आम सड़ गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला वो आम की टोकरी लाओ। शिष्यों ने आम की टोकरी लाई कि आज क्या होने वाला है, सड़े आम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो सड़े आम उस मायावादी प्रचारक के मुंह में डालते हैं, बोलते अरे मुझे सड़े आम क्यों खिला रहे हो आप। बोले अभी तो आपने बोला सब कुछ एक है, तो अच्छे आम सड़े आम सब एक ही है, तो आप सड़े आम खाओ। इस तरह प्रचार करते थे। और आप में से कई भक्त प्रयाग से आए हैं। 1933 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने श्रील प्रभुपाद को दीक्षा भी दी। और क्या बात को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने नोटिस किया, ये हमको देखना चाहिए। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, 5-7 मिनट, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब श्रील प्रभुपाद का परिचय सुना तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने कई चीजें बताई कि अभय बाबू हैं, ये बहुत मदद हमको करते हैं, इन्होंने हमारे कई गौड़ी मठ में डोनेशंस भी दिलवाए हैं, विग्रह भी स्पॉन्सर करें, बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती देख करके बोलते हैं हाँ मैं इनको जानता हूं, इनकी श्रवण में बहुत रुचि है। तो वो चाहते थे कि उनके अनुयायी सिद्धांत को समझें, केवल एक वेल विशर या केवल एक डोनर बन के ना रह जाएं। एक बार एक व्यक्ति प्रवचन में बात कर रहा था तो बीच प्रवचन में उन्हें डांट दिया, क्या बाबूजी आप सोचते हो 100% का डोनेशन देके आपने मुझे खरीद लिया है, यहां आप श्रवण करने के लिए आइए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के अंदर वो स्फुलिंग, वो आध्यात्मिक ऊर्जा देख पाए। प्रस्ताव भी आया कि अभय बाबू को हम लोग एक मंदिर का अध्यक्ष बना देते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अभी उनको छोड़ दो, अभी उनको ये सब में मत डालो, समय आने पर वो सब कुछ करेंगे। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था। 1934 में जो आप योगपीठ का आज अद्भुत मंदिर देखते हैं वो भी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने स्थापना की। और 1935 में बहुत बड़े बड़े राजाओं के बीच में, त्रिपुरा के राजा, गवर्नर ऑफ बंगाल की उपस्थिति में उसका उद्घाटन भी किया। जब उस समय पर ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंग्रेजी सरकार ने आर्कियोलॉजिस्ट को भेज करके अन्वेषण किया और ऑफिशियली गवर्नमेंट ने यह नोटिस जारी किया कि चैतन्य महाप्रभु का ऑफिशियल बर्थ प्लेस यही है योगपीठ, क्योंकि यह करवाना जरूरी था। आज हम तो मानते हैं, आज से 500 साल बाद कोई और कहीं और पर बताने लगेगा तो फिर लुप्त हो जाएगा। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट करवाया कि कैसे यही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कैसे वो निमग्न रहते थे उसके लिए भी एक सुंदर लीला आती है। एक बार रात के समय योगपीठ में उनका सेवक देखता है कि वो रात में चल करके कहीं जा रहे हैं। अब पूछने की हिम्मत तो नहीं थी। जब ब्रह्म मुहूर्त के पहले वो वापस आए तो शिष्य ने पूछा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आप कहाँ गए थे। तो वो बोलते हैं कि हर रात में चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मायापुर धाम का दर्शन करने के लिए आते हैं और उनका लोकल गाइड मैं हूं, तो मैं उनको ले जा करके महाप्रभु के स्थानों की यात्रा कराता हूं। तो ये उनका स्वभाव था। हार्ड एज थंडर, सॉफ्टर एज रोज। कई और भी लीलाएं हैं लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। आगे जाकर के जगन्नाथपुरी में 1936 में चटक पर्वत के ऊपर उन्होंने भजन किया, जो उनके अंतिम दिन थे। कई बार उनके शिष्य उनको पूछते थे कि गुरु महाराज आज आपको कैसा लग रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे जब तक तुम मुझे कृष्ण कथा बोलने दोगे तब तक मुझे अच्छा लगेगा, जब तुम लोग मुझे आराम करने के लिए बोलते हो तब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जब वो प्रवचन करते थे तो कई बार 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और उनका सेवक अगर प्रसाद के बारे में याद दिलाता था तो बहुत नाराज हो जाते थे। तो ये अंतिम दिनों में उनका भजन था। श्रील प्रभुपाद ने 13 दिसंबर को, यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के अप्रकट होने के 1.5 महीने पहले ही एक पत्र लिखा। श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि गुरु महाराज मैं एक गृहस्थ हूं, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूं।
आपके सन्यासी शिष्य इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको वही उपदेश देते हैं जो उनको पहली मीटिंग में दिया था कि आप जाइए पाश्चात्य जगत में जा करके प्रचार कीजिए। 1936 दिसंबर में वो बाग बाजार गौड़िया मठ में वापस आते हैं और अपने शिष्यों को इकट्ठा करके उपदेश देते हैं। वो बोलते हैं कि कैसे आप सब एकजुट होकर के ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करिए। आप नहीं जानते कितने कठिन परिश्रम के बाद ये परंपरा को दोबारा जागृत किया है। अब दोबारा से इसको बंद मत कीजिए। एक साथ मिलकर के चैतन्य देव, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के भाव को प्रचार कीजिए। आपस में लड़ाई मत कीजिए। एक साथ मठ के संचालन के लिए गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाइए। और अगर आप ऐसे प्रचार करेंगे तो पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं फैल जाएंगी। और ये शिक्षाएं देने के बाद 1 जनवरी 1937 को सुबह 5:30 बजे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस भौतिक जगत का त्याग करके आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। उसके पहले वो अपने एक शिष्य को श्री रूप मंजरी पद भजन गाने के लिए भी अनुरोध करते हैं और उससे भी वो ये शिक्षा देते हैं कि अंतिम समय में भी अपने गुरु के, अपने आचार्यों का स्मरण हमको करना है। राधा कृष्ण का स्मरण करने का हमारा स्तर नहीं है। रूप गोस्वामी की शिक्षाएं, प्रभुपाद की शिक्षाएं, यही हमारे लिए धन है। और एक आश्चर्य की बात, 5:30 बजे सुबह जैसे ही वो अपना देह त्याग करते हैं, गौड़िया मठ की सारी घड़ियां उसी समय रुक जाती हैं। सारी घड़ियां 5:30 बजे, अभी भी आप बाग बाजार गौड़िया मठ में जाएंगे, आप देखेंगे 5:30 उसमें बजे हुए हैं सुबह के, क्योंकि सारी घड़ियां अपने आप बंद हो जाती हैं। एक स्पेशल ट्रेन में उनके पवित्र शरीर को कलकत्ता से शीलदह स्टेशन से कृष्णनगर ले जाया जाता है। हजारों भक्तों के साथ मायापुर धाम में जाते हैं। चैतन्य मठ में शाम को जाते हैं और अगले दिन सुबह उनकी समाधि होती है। और समाधि में पहली बार, इसके पहले जितने आचार्यों को समाधि दी गई उनको लिटा करके समाधि दी गई, लेकिन पहली बार क्योंकि सिंह गुरु थे, बैठ करके उनको समाधि दी गई। और उसी के साथ वहां पर आज भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं किस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज भी अपने अनुयायियों को प्रेरणा दे रहे हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से आज कृष्ण भक्ति पूरे विश्व में फैल रहा है। श्रील प्रभुपाद को एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभुपाद, आपसे बड़ा भी कोई प्रचारक है क्या, क्योंकि आपने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को फैलाया। प्रभुपाद तुरंत, विदाउट ए मोमेंट, तुरंत बोलते हैं, हाँ, मेरे गुरु महाराज मुझसे बड़े प्रचारक थे। तो वो प्रेस रिपोर्टर पूछता है कि कैसे, क्योंकि हमने तो सुना है कि आपने पूरी दुनिया में ये कृष्ण भक्ति को फैलाया और आपके गुरु महाराज तो केवल इंडिया में ही प्रचार कर रहे थे। प्रभुपाद बोलते हैं, जिस समय पर मेरे गुरु महाराज ने प्रचार किया, जितनी अपसंप्रदायों का खंडन किया और जितने कम संसाधन में किया, आज मैं एरोप्लेन में बैठ करके सारे जगह पर जा रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। अगर मेरे गुरु महाराज के पास इतने संसाधन होते, एरोप्लेन वगैरह होता, तो पृथ्वी तो बहुत पहले कंप्लीट कर देते, मार्स, जुपिटर, मून पे जाकर भी प्रचार कर देते। तो इसलिए मेरे गुरु महाराज सबसे बड़े प्रचारक हैं। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारी परंपरा के लिए बड़े प्रेरणा है। हम लोग सब अपनी भक्ति में जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आज के पवित्र दिन हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं कि जो कठिन परिश्रम उन्होंने इस परंपरा को बनाने के लिए किया है, जो परंपरा के प्रवाह को उन्होंने पुनर्जागृत किया है, हम उस परंपरा में कम से कम सहयोग कर सके, रुकावट ना बने। इसी के साथ हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती को पुनः प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाप्तये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरुज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप
अपसिद्धांत दांत हारिणे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तिरुभाव दिवस की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अभी 12:05 पे पुष्पांजलि होगी, तो सभी से निवेदन है कि कृपया समय पर उपस्थित रहें पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए। हरे कृष्णा।